کیا اونٹ میں 10 حصے کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا اونٹ میں 10 حصے کر سکتے ہیں؟ ایک روایت تو ملتی ہے بھائی، مگر وہ بہت قوی معاملہ نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 7 حصے رکھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے یا اونٹ میں 7 حصے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 7 حصے رکھیں۔ ویسے ایک روایت ملتی ہے 10 حصوں کی، زیادہ سے زیادہ 10 ہے، کسی کی کوئی مجبوری کہیں ایسی ہو تو کوئی منع نہیں کر سکتا اس روایت کو۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور ہے، کیا چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آپ چوتھے دن عصر کی نماز تک جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ جب جو آپ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، وہ ٹائم تک جو ہے نہر کا ٹائم ہے، آپ اس میں قربانی کر سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں صدقہ ہوتا ہے پھر 3 دن کے بعد؟ نہیں، کچھ کہتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں تو آپ کو، چوتھے دن کا معاملہ انہوں نے بتایا۔ یہ حنفی حضرات کہتے ہیں، باقی تمام مسلک کے جو لوگ ہیں وہ چوتھے دن کی قربانی کو بھی مانتے ہیں، حنفی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 3 دن۔ تو آپ تو ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں ہمیں اپنے علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ہم 3 دن کے اندر کر دیں، کوئی مجبوری تھوڑی ہے۔ مغرب کے بعد نہیں کیا کر سکتے؟ مغرب کے بعد تک کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف دن شبے سے 3 دنوں میں تو پورے دن آپ کر سکتے ہو، تیسرے دن آپ مغرب تک کر سکتے ہو، لیکن چوتھے دن کی جو بتا رہا ہوں نا میں، وہ عصر کے ٹائم پہ جو میں نے بتایا تکبیر تشریق جو کہلاتی ہے نا، وہ 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز تک ہوتی ہے، وہ ٹائم قربانی اس ٹائم ختم ہوتی ہے۔ حصہ جو ہوتا ہے یہ بالغ نابالغ کا بھی ہے اس میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حصے میں بالغ نابالغ کا بھی ہوتا ہے؟ بھائی حصہ جو ہے وہ سربراہ جو ہوگا نا گھر کا ہیڈ، جیسے آپ ہو اپنی فیملی کے، ایک چولہا ہے آپ کا، آپ کے 4 بچے ہوں 6 بچے ہوں، ایک بیوی ایک آپ، ایک حصہ ہے، زیادہ آپ جتنے بھی کر سکو، اس لیے بالغ نابالغ کا چکر ہی نہیں ہے، ایک فیملی کی طرف سے ایک حصہ ہے، زیادہ آپ جتنے بھی کرو۔ حضور نے اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کیا، اور ایسا بھی کیا کہ ایک بار 100 اونٹ قربان کیے، تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی کر دیا حضور نے، اس میں 700 پتی ہو گئی، اور ایک وہ حصے میں اپنے کنبے کا بھی کر دیا، مطلب اپنی اس یونٹ کا اپنے۔ تکبیر تشریق کیا ہے، اسے کب سے کب تک پڑھیں؟ ان کا سوال ہے تکبیر تشریق کیا ہے، اسے کب سے کب تک پڑھیں؟ اصل میں تکبیر تشریق جو ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک آپ کو یہ پڑھنی ہے، اور باواز بلند پڑھنی ہے، اور عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ نفلوں کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کے بارے میں، ان کا نام میرے یاد نہیں آ رہا، وہ چلتے پھرتے بازار میں بھی پڑھتے تھے۔ تو اس لیے یہ دن ایسے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ تک آپ جتنی مرضی پڑھو ابھی سے، میں نے تو ابھی سے پڑھنی شروع کر دی، مطلب زور سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جتنی آپ حمد و ثنا ان دنوں میں کر دو بہت بڑھیا ہے۔ یہ جو سب سے آسان الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، سب کو یاد اس لیے ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں بہت زور سے بآواز بلند وہ پڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے شروع ہوتے دن نماز کے بعد پڑھیں، اور ہمارے یہاں معمول جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کے بعد پڑھنے کا۔ میں نے وہی تو بتایا، میں بھی خود بھی میں نے شروع کر دی، بہت سے صحابی بھی پڑھتے تھے، بازاروں میں پڑھتے تھے بآواز بلند، میں نے تو آپ کو مثال دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ ہے کہ آپ سمجھو نا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، بس اللہ بڑا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کی جو ہے توحید بیان کرنا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، تو یہ جو ہے جتنا آپ زیادہ کرو گے ان دنوں میں اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں درزی ہوں، کیا بچا ہوا کپڑا واپس کروں یا رکھ لوں؟ ان کا سوال یہ ہے درزی ہیں کوئی صاحب، وہ بچا ہوا کپڑا واپس کریں یا رکھ لیں؟ بھائی یہ تو آپ ان سے اجازت لے لیں، ہم وہاں ایک بورڈ لگا دیں کہ بھائی جو بچا ہوا کپڑا ہوگا جو ڈیمانڈ کرنا چاہے لے لیں، ہم دے دیں گے، اور نہیں تو پھر وہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم رکھ لیں، اس سے وہ سیف ہو جائے گا۔ ویسے اسے دینا چاہیے، اصول یہ ہے کہ وہ امانت ہے دوسرے لوگوں کی، لیکن اگر وہ یہ بورڈ لگا دے گا نا تو پھر اس کی جان اللہ کے یہاں بچ جائے گی۔ جب بال 10 دن نہیں کٹانے تو حج کو 5-6 دن پہلے جانے والے عمرہ کر کے سر مڑاتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 10 دن کا حکم دیا حضور نے ناخن اور بالوں کا، اور جو عمرے حج پہ جاتے ہیں، مان لو کسی بہت سے لوگوں کی ایک ہفتے پہلے فلائٹ ہوتی ہے،
اور وہ مکے پہنچ کے پہلے عمرہ کرے گا، پھر سر منڈوائے گا، جس سے کہ احرام کی اس سے پابندیوں سے باہر آ جائے۔ تو 10 دن والی پابندی کیا ہوئی بھائی؟ 10 دن والی جو پابندی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پہ نہیں گئے ہوئے۔ حج پہ جانے کے بعد حاجیوں کی پابندی بالکل الگ ہیں، اس لیے وہاں وہ ٹینٹ کرائے گا اس ٹائم جب یہ احرام کی حالت سے باہر آئے گا، اس پہ یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوں گی، وہاں کے قانون وہیں رہیں گے اور حج والوں کے، حاجیوں کے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے قانون یہاں رہیں گے، وہ تو مطابق اچھا، حاجی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ حرام کیوں قرار دیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے اتنا بڑا اجر کا باعث ہے ہو جائے 9 ذی الحجہ؟ حاجیوں کے لیے ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے لیے کیوں نہیں رکھا اور لوگوں کے لیے کیوں رکھا؟ بھائی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، پچھلے اور اگلے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کا معافی کا اعلان حضور نے کیا۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ حضور نے حاجیوں کے اوپر کیوں نہیں رکھا ہے، کیونکہ بھائی آپ اگر عرفات جاؤ گے تو آپ حالت دیکھنا وہاں کیا ہے، کتنی گرمی اور کتنا برا حال ہوتا ہے اور کتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے اس ٹائم روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا، اور صحابہ کو تو لگتا تھا کہ روزہ ہوگا حضور کا۔ ایک آپ میری بات سمجھو، بیچ میں نہیں بولا جاتا ہے یہاں پر۔ دیکھو ایک بار ایسا ہوا کہ حضور عرفات میں موجود تھے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کسی، کیونکہ 9 ذی الحجہ تھا، تو صحابہ کرام نے حضور کو دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کو روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، تو حضور نے اسے نوش فرمایا، تو اس سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کو روزہ عرفات میں نہیں رکھنا۔ باقی تمام دنیا میں جتنے ہی مسلمان ہیں، چاہے مکے میں مدینے میں ہی کیوں نہ ہو، جو حج نہیں کر رہے عرفات نہیں گئے، ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ نماز، یہ الگ سا سوال ہے، نماز کیوں فرض کی گئی؟ ان کا سوال یہ ہے نماز کیوں فرض کی گئی؟ ویسے تو نماز ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ للذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو، کیونکہ ہم بیچ بیچ میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا، ہم کس کا دیا کھا رہے ہیں، تو یاد دہانی کے لیے نماز فرض کی گئی، اور اس کی علت بھی بیان کی سورہ عنکبوت آیت میں کہ نماز تمہیں برائی اور فحش اور منکر سے روکتی ہے، تو فرض اس لیے کی گئی تاکہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے انہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نماز کا معاملہ تو ایسا ہے کہ مطلب مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا جو تعلق اللہ سے ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھ لو تمام جتنی بھی عبادات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی روح ہے، تو نماز کی روح اللہ کی یاد ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نے بھول لگائی ہوئی ہے، مطلب انسانوں کے ساتھ بار بار ہمیں یاد دلایا گیا کہ اب عصر ہو گئی، اب مغرب ہو گئی، اب عشاء ہو گئی، جاؤ اللہ کے آگے جھکو، اسی کے دیے ہو تم زندگی جی رہے، اسی کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہے، تو جو اصل مقصد قرآن بیان کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ تو نماز کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ بے شک وہ بڑی بھاری چیز ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جنہیں میرے رب سے ملنے کا یقین ہے۔ جو آپ اب بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں ایک بات اور جوڑ دوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قرآن میں ذکر ہے بے شک بھاری چیز ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، جو یہ تو ہر عبادت کے لیے بات ہے۔ دیکھو سورہ قلم ہے، اس میں آج آپ جا کے 42-43 آیت پڑھنا، اس میں اللہ نے کہا کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی اور بلایا جائے گا کہ سجدہ کرو، مطلب جو تجلی اللہ کی دیکھیں گے تو سجدہ کرنے کے لیے لوگ بلایا جائیں گے، تو اس ٹائم وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آگے فرمایا ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، غم چھایا ہوا ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا میں بھی بلایا جاتا تھا اور وہ سجدے نہیں کرتے۔ تو جو لوگ یہاں آج سجدے نہیں کرے، جو میں کہتا ہوں نا کہ وہاں نبی نے فرمایا وہاں لوگوں کی کمریں تختہ کر دی جائیں گی، جھکنا چاہیں گے حضور کی، تو وہ اللہ کی تجلی دیکھ کے کوشش کریں گے جھکنے کی، جھک نہیں سکتے، اس لیے یہاں جھک جاؤ۔ اور ہم اس کا مثال دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرسیوں پہ اور اسٹولوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ میرے اپنے رشتہ داروں میں سجدہ ان سے چھین لیا اللہ نے، مطلب کولے کا آپریشن ہو گیا، ختم ہوا سجدہ۔ تو آپ کو جب تک مہلت ہے، جب تک آپ کی صحت ہے، جب تک آپ کی جبین جھک رہی ہے اللہ کے آگے، تب تک اسے مہلت سمجھو اللہ رب العزت کی، ایسا نہ ہو کسی بھی دن مہلت چھین لے۔ ہمارے اپنے ضرور رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر پاتے، کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں مثال موجود ہے۔ یہ مثال وہاں بھی سمجھ لو کہ وہاں تم سجدہ کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے،
यहाँ ये करना चाहते हैं सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कमर इनके घुटने इजाज़त ही नहीं देते हैं। आप रफ़ादैन करते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ? मुझे इनका सवाल यह है कि मैं रफ़ादैन करता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा महसूस हुआ। भाई मेरी नमाज में बहुत ज़्यादा तवज्जो बढ़ गई रफ़ादैन से। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे इमाम साहब हो या अलग अलग मस्जिदों में उनसे भूल हो जाती है, तो वो भूल हम जैसे लोग उनके सुधार देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें यहाँ तीसरी रकत में जो है बैठ के उठना है, पहली रकत के बाद बैठ के उठना है। मतलब आप लोग तो सीधे खड़े हो जाते हो ना, उसके बाद हम जो अहले हदीस हैं या सुन्नत पे जो अमल करते हैं वो पहले बैठते हैं फिर खड़े होते हैं। तो उन्हें पता होता है कि अभी हम बैठे थे, उन्हें याद रहता है, फिर वो उठ के रफ़ादैन करते हैं। उससे भी उन्हें अंदाज़ होता है तीसरी रकात में फिर रफ़ादैन करना होता है खड़े होने में। तो ये नमाज याद रहती है, तवज्जो रहती है। जो हुजूर ने फरमाया ना कि सुकून जो है वो नमाज का अहम तरीन सुकून है, तो रफ़ादैन से आपको नमाज में सुकून बहुत हासिल होता है। पहले तो मैं घर पे करता था, लेकिन अब तो मैंने 1-1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब अल्लाह का डर नहीं तो बंदों का क्या डर यार, कोई कुछ कहेगा समझेगा, अहले हदीस समझो कुछ ही समझो, भाई हमने मुसलमान रहना है बस खत्म। तो मैंने कॉल पढ़ा था इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े इमाम हुए, उन्होंने फरमाया कि पूरे साल में ये जिलहिज्जा के 10 दिन और रमज़ान की 30 रातें, इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात कुरान में हदीस से मिलती है। इनका सवाल यह है कि कौल यह है कि ज़िलहिज्जा की 10 रातें इनका कोई मुकाबला नहीं है, मगर रमज़ान इसका जिक्र इसमें नहीं आ सकता। रमज़ान को तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अहमियत दे के बात बता दी कि इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। तो इसलिए उन रातों के अलावा अहम तरीन रातें हैं मेरे नज़दीक। एक दिन जिलहिज्जा के 10 दिन भी रातें भी, रमज़ान की 10 रातें, बल्कि उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा वो तो एक सहाबी का कौल है ना। नबी की बात क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह का कलाम, उसमें ये बात आ चुकी कि सबसे अफजल रमज़ान का महीना है, और उसमें भी जो 10 आखिरी दिन हैं, जो उसमें भी जो ताक रातें हैं, ये सबसे अफजल हैं। वैसे उनके बाद इनका नंबर आता है। जैसे आप जिलहिज्जा फरमाएंगे 9 दिन अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम से आज़ाद हो गया, जहन्नम में हाँ। के साथ नहीं करता, हाँ, तो उनकी वो रमज़ान भी हो गया उसमें। आप बात नहीं समझे। ये फजीलत की हदीसें हैं, ये सबसे ज़्यादा रमज़ान के बारे में है। रमज़ान में इतने आज़ाद होते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जन्नत जो है वो लोगों के लिए मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों की मग़फ़िरत करता है। ये तो हदीसों साबित है। तो वो मुकाबला इनका किसी रमज़ान का मुकाबला किसी दिनों से नहीं हो सकता। रमज़ान के बारे में ये बात आती है कि ये अल्लाह का महीना है, शाबान के बारे में आती है कि हुजूर का महीना है। तो रमज़ान से किसी भी दिनों को किसी भी रात को नहीं मिलाया जा सकता। वो एक सहाबी अपनी मर्ज़ी से कुछ समझते हों, उन्होंने कुछ देखा हो उस बारे में, लेकिन मेरे नज़दीक जो है ना, जो अहादीस और कुरान की आयतें हैं उनकी रोशनी में अब अगर आप कंपेयर करोगे तो रमज़ान से बड़ी कोई चीज़। एक बहन का सवाल है कि मेरे पास 12 तोला सोना है जो मैं जेवर पहन लूँ, कैश भी है, क्या कुर्बानी करूँ? इनका सवाल यह है कि इनके पास सोना है और कैश भी है, क्या कुर्बानी करें? अगर आपके हस्बैंड ज़िंदा हैं तो वो कुर्बानी करेंगे अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, और अगर आप बेवा हैं तो फिर आप कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि आप साहिब हैसियत हैं, आपके पास इतना सोना है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड जिंदा है तो एक फैमिली की तरफ से ये कुर्बानी काफ़ी है, ज़्यादा जितना ज़्यादा भी आप करें कोई हर्ज नहीं। और सवाल है, मैं कर्जदार हूँ, क्या कुर्बानी करूँ? इनका सवाल यह है कि मैं कर्जदार हूँ, क्या कुर्बानी करूँ? भाई अगर आप अपने साले की शादी में 10,000 का सूट बनवाते हैं और आपकी बीवी 15,000 का सूट बनाती है और वहाँ पे गिफ्ट में 25,000 देते हैं कर्जे के बावजूद, तो फिर तो आपको कुर्बानी करनी चाहिए। और अगर वाकई आप मकरूज़ हैं और आप इन सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा ही नहीं ले पाते क्योंकि आपके पास इतना माल ही नहीं है, फिर आपके ऊपर कुर्बानी नहीं है। अपने आप हर सिचुएशन का खुद ही हल निकालें। असल में मैंने पहले भी अपने साथियों की बात की है कि अल्लाह के मामले में फंसने की कोशिश किया करो, बचने की कोशिश ना किया करो। क्या हाजी को अपने वतन में भी कुर्बानी करनी है? इनका सवाल है कि हाजी को अपने वतन में भी कुर्बानी करनी है? नहीं भाई, असल में कुर्बानी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो इस्तिताअत और एक जो है वो मुकीम होना, क्योंकि वो तो सफ़र में है वहाँ पे, तो उस पर कुर्बानी नहीं होगी। वो वहाँ की कुर्बानी देगा जो वहाँ हज का जो शुक्राने की कुर्बानी होती है। अच्छा, जो ज़कात के लिए क्राइटेरिया है वही कुर्बानी के लिए? इनका सवाल है क्या ज़कात वाला क्राइटेरिया ही कुर्बानी के लिए? नहीं भाई,
ज़कात का क्राइटेरिया अलग है, कुर्बानी का तो अगर आपके पास एकदम पैसा है, ज़कात के लिए तो 1 साल गुजरने के बाद ज़कात आपको देनी है, और इसमें तो आपके पास अगर 2, 4, 10, 5 दिन भी पैसे आ गए पहले और आपके पास इस्तात आ गई, आपको हिस्सा करना है। क्या हिजाब में औरत सर का मसा कर सकती है? इनका सवाल है क्या हिजाब में औरत सर का मसा कर सकती है? बिल्कुल भाई, हिजाब बांधे क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा बांधा हुआ था और उसी पे मसा किया है। इसीलिए कोई पगड़ी हो, कहीं ऐसी मजबूरी हो कि पगड़ी नहीं उतार सकता आदमी, या इमामा बांध रखा हो, या जैसे स्कार्फ कहीं बाज़ार में है, किसी मॉल में है, वहाँ वज़ू करे, स्कार्फ पे हाथ ले, इंशाल्लाह वज़ू हो जाएगा। क्या नर्स मर्द को छुए तो ठीक है? क्योंकि सवाल ये है क्या नर्स मर्द औरतों को छुए तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। देखो जंगे जितनी भी होती थी ना, उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को साथ ले जाते थे जो मर्दों की मरहम पट्टी करती थी, तो इसलिए नर्स मर्द हो वो औरतों को छू सकते हैं, और औरत हो तो वो मर्दों को छू सकती है। नियत का हिसाब अल्लाह को पता है भाई, अगर वो अंदर से नर्स है ही नहीं और वो हराम ज़िंदगी में छुएगा तो उसकी तो पकड़ होगी लाजमी बात। हैज़ में तहारत से पहले माँ दूध पिला सकती है? इनका सवाल यह हैज़ में तहारत से पहले माँ दूध पिला सकती है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल पिला सकती है। असल में तो ये जो नापाकी है ना, ये दायमी नापाकी नहीं है, ये तो वक्ती नापाकी है, तो इसलिए खाना ही पका सकती है, दूध भी पिला सकती है, खा भी सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता था कि रमज़ान में हुजूर जो है जुम्बी होते थे, मतलब जिमा किया हुआ है, और अभी गुस्ल नहीं फरमाया, सहरी खा ली, उसके बाद गुस्ल फरमाया, फिर नमाज पढ़ी। इसलिए कोई एक और वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहे थे, पीछे कुछ और सहाबा भी थे, तो थोड़ी देर में हुजूर ने देखा वो गायब, और जब लौट के आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा भाई कहाँ चले गए? उन्हें हुजूर असल में मेरे याद नहीं रहा था, मैंने गुस्ल नहीं किया था, मैं जम्मी था। नबी करीम ने फरमाया कि मोमिन कभी निजिस नहीं होता, मोमिन हमेशा पाक होता है। वो अलग बात है कि वक्ती निजात थी, उसमें आप कुरान नहीं छू सकते, बाकी आप सब काम आप कर सकते। ये जो बात कही जाती है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैगाने में कहीं ना कहीं हज़रत अम्मा हव्वा का हाथ था, और उसके अलावा दूसरे में से क़यामत तक पीरियड आते रहेंगे वो इससे अल्लाह तौबा। इनका सवाल ये है कि क्या आदम अलैहिस्सलाम को बेगाने में माँ हव्वा का हाथ था, इसीलिए उन्हें पीरियड औरतों को क़यामत तक आते रहे? कोई हदीस, कोई कुरान की आयत नहीं है, लोगों ने खुद बना रखी। दोनों की गलती थी, दोनों को उतारा गया, दोनों को कहा गया कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम ज़मीन पे जाओ, वहाँ खाओ पियो और मेरे अहकाम पूरे करो। जो तुम्हारी औलाद में मेरे अहकाम पूरे करेंगे वो फिर जन्नत में, और जो नहीं करेंगे वो दोज़ख में। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक प्री प्लानिंग थी, उसी के तहत उन्हें भेजा गया ज़मीन पे। और फिर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड इस वजह से आ रहा है, पीरियड तो एक हिस्सा है फर्टिलाइजेशन का, मतलब जो आगे अल्लाह ने पौध चलानी है। जो हैज़ होते हैं औरत के, जिस औरतों को हैज़ नहीं आते उन्हें बच्चे ही नहीं होते। मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि वो माजूर होती हैं, उनकी बच्चेदानी नहीं बनी होती अल्लाह की तरफ से, जैसे बहुत से लोगों का दिमाग नहीं बना होता, आँखें नहीं बनी होती, तो उनके बच्चे ही नहीं हो पाते हैं। तो हैज़ आना एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानी है, और उसी के ज़रिए जो है दुनिया कायनात अल्लाह ने चला रखी। उन्हीं हैज़ के ज़रिए तो नबी भी बने, तमाम इंसान बने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा न खाता उन्हें सज़ा के तौर पे, वरना नबी को ही उससे बनते हैं अगर वो गंदगी इस तरह की मानी जाती है। फ़र्ज़ नमाजों का अफजल वक्त क्या है? इनका सवाल है फ़र्ज़ नमाजों का अफजल वक्त क्या है। जब ये एक साहबी ने आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सोच में पड़ गए। तो इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए पहले दिन, और उन्होंने अव्वल वक्त में तमाम नमाजें जो हैं वो नबी को बताई कि इस तरह से पढ़ी जाए। फिर अगले दिन आखिरी वक्त में, तो इनके बीच का जो टाइम है वो सारा अफजल है। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल में फजर की नमाज जो थी वो बहुत सवेरे पढ़ना था, इतना कि अंधेरा होता था कि एक दूसरे को पहचान नहीं रखते, और ईशा की नमाज ताख़ीर से पढ़ते। तो ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। वैसे जो टाइमिंग जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस नमाज का तय कर गए शुरू से आखिर तक, वो टाइम उसका है और वो अफजल टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई काम में लगा हुआ है, थोड़ी देर से नमाज़ पढ़ना चलेगी, मान लो मगरिब की नमाज निकल गई, किसी फैक्ट्री में है और वो आधे घंटे के बाद 4-5 लोग मिल के नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब हो गई उनका वही अफजल टाइम है। मरहूम की जो कुर्बानी है हिस्सा वो नहीं कर सकते? इनका सवाल है मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। मरहूम की तरफ से कोई कुर्बानी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के रूहानी बाप थे और एक नबी थे,
उम्मत की तरफ से उम्मत के सरबराह थे, तो हम तो उम्मत के सरबराह हैं, तो हम न किसी अपने माँ बाप की तरफ से ना हुजूर की तरफ से किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह के नाम की कुर्बानी होगी और फिर दुआ की जाएगी कि इन सबको इसका सवाब मिलेगा। अच्छा, अब इसी सवाल को मैं थोड़ा कंटिन्यू हो गया। अगर कोई बाप या कोई भाई अपनी इतनी जायदाद छोड़ के जाए, इतना ऐसा भी छोड़ के जाए तो लगातार मुनाफा देगा, तो उसके मुनाफे से उसका सदका जारिया के लिए तो उसकी कुर्बानी उसका हिस्सा कर सकती है। इनका सवाल यह है कोई बिजली छोड़ के जाए तो क्या उसके हिस्से में से उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? भाई उसके मरते सबसे पहले तो वो दूसरों का माल हो जाता है, वो तो बढ़ जाता है, उसका रहता ही नहीं। अगर वो बिजली छोड़ के गया, उससे 4 लड़के 4 लड़कियाँ हैं, पहले तो वो हिस्से बढ़ जाएंगे, उसका रहा कहाँ, इसलिए उसकी तरफ से कुर्बानी है ही नहीं। अब तो उन लोगों की तरफ से कुर्बानी होगी जिनके पास उसका माल बटा। मतलब मरते ही माल दूसरों का हो जाता है, उसका नहीं रहता, उसकी तरफ से कैसी कुर्बानी? मरने से पहले वसीयत करके जाए, औलाद को तो करते रहिए। अगर कोई वसीयत करके जाए मरने से पहले कि कुर्बानी करते रहना, तो क्या औलाद करे? करना चाहे कर दे, उस वसीयत की वैसे ज़रूरत नहीं है। और गलत वसीयत की इस्लाह भी ज़रूरी है। जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ से इजाज़त ही नहीं है कि मुर्दों की तरफ से कुर्बानी हो, तो उनकी मजाली नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस तरह की वसीयत करके जाए। मामला भी ऐसा ही है। हैं? हज के लिए कह जाए, हज के लिए अगर उसने फ़र्ज हज नहीं किया तो वो तो उसके ऊपर अल्लाह का कर्ज है। कुर्बानी जो है, पहले ये समझ लो, कुर्बानी ना वाजिब है ना फ़र्ज है, कुर्बानी सुन्नत है। ये जो हमारे हनफी भाई हैं ना, ये लोग इसे वाजिबात कहते हैं, बहुत ज़रूरी, वरना है तो ये ताकीदी हुक्म इसका। नबी ने यहाँ तक फरमाया, भाई वही मैंने आज सुनाई आपको कि जो इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह तक भी ना है। लेकिन हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये मामूल मैंने खुद पढ़ा है कि वो कई बार, एक आध बार उन्होंने कुर्बानी छोड़ी है, कहीं ये फ़र्ज़ों में अच्छा मार गया, तो इसलिए उसे फ़र्ज़ों से हटाने के लिए, तो इसलिए सुन्नत है, लेकिन ताकीदी सुन्नत है, करनी ज़रूर चाहिए। क्योंकि हदीस है कि अल्लाह को उस दिन खून बहाने ज़्यादा कोई अमल अजीज़ ही नहीं है बनी आदम का। तो इसलिए पहले समझ लें बात को कि कुर्बानी है क्या, आपको करनी ज़रूर चाहिए, लेकिन इसे इस तरह से अपने ऊपर फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए। जो ना हमारे यहाँ मसला ये है कि जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, अब मैं वही कहता हूँ नमाज़ों का, हमारे पर नमाज़ फ़र्ज़ है, फजर में सारी मस्जिद खाली पड़ी जाती है, हमारी एक सब होती है, वो फ़र्ज़ है, उसकी ताकीद नहीं करते, कुर्बानी के पीछे भागे फिरेंगे, तरावी के पीछे भागे फिरेंगे। जो चीज़ें आपको जहाँ रखनी चाहिए उन्हें वहीं रखनी चाहिए। आपके लिए पहले जो है नमाज़ें, उसके बाद रोज़े, उसके बाद आपका हज और ज़कात, ये अहम तरीन चीज़ें हैं। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी मक्खन की तरह लेंगी, आपके ईमान में दर्जे बुलंद कराएंगी आपके वहाँ। लेकिन अगर आपके यही पूरे नहीं, आप करो जाओ, उससे क्या हो। ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ी और कुर्बानी करी तो कुर्बानी सही होगी? इनका सवाल ये है, ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ी और कुर्बानी कर दी, क्या कुर्बानी सही होगी? कैसे सही होगी? वो तो कुर्बानी नमाज के साथ जुड़ी हुई है। एक बार एक सहाबी ने, नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ के निकले तो देखा गोश्त रखा हुआ था। हुजूर ने पूछा ये कैसी कुर्बानी करी? उन्होंने जी हमने कुर्बानी कर दी नमाज से पहले। हुजूर ने, ये कुर्बानी नहीं हुई, ये तो सदका हुआ, नमाज के बाद कुर्बानी होती है। अब नमाज पढ़ी नहीं तो वो सदका हुआ, गोश्त तो खा लेंगे, वो जायज़ होगा, लेकिन वो जो है कुर्बानी की उसमें ज़माने में नहीं आया। अरे यार, साल में एक नमाज ईद उल अज़हा, एक ईद उल फितर, इन्हें ही नहीं पढ़ रहे लोग, तो कुर्बानी क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? वो वाजिबात में से नमाज है, कुर्बानी सुन्नत है। अगर ट्रेन या बस में वगैरह में जाम की वजह से नमाज न पढ़ सके तो? इनका सवाल यह है, ट्रेन या बस में या जैसे आजकल हालात हैं उसमें नमाज ना पढ़ सके तब? देखो, पहले तो नमाज का मामला समझ लो। एक बार जंग अहज़ाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों का पीछा करते करते इतनी आगे निकल गया कि नमाज का टाइम ही निकल गया, भूल गए। याद आते ही हुजूर ने नमाज पढ़ी। एक बार एक मार्के से वापस आ रहे थे, रात का टाइम था, साहबा किराम को कहा भाई अभी फजर में टाइम है, सब लोग आराम कर लो। कोई पहाड़ी से लग के, कोई ऊँट से लग के, कोई पेड़ से लग के, किसी पत्थर से लग के लोग आराम करने लगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया हुजूर ने कि तुम जागते रहना और जब नमाज का टाइम हो जाए सबको जगा देना। और मैं भी जाग रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आँख लग गई, हज़रत बिलाल की भी आँख लग गई, और जब आँख खुली तो फजर की नमाज कज़ा हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा कि भाई तैयारी करो और नमाज पढ़ो। एक साहबी आए हुजूर के पास, मैं ऐसी बात बता रहा आपको, आज आपका नमाज की तरफ से भी ध्यान खुलेगा। वो कहने लगे हुजूर आज तो बड़ी कोताही हो गई,
اور بڑی خطا ہو گئی کہ نماز جو ہے ہماری نکل گئی. انہوں نے نہیں کوئی خطا نہیں, خطا جاگتے ہوتی ہے, سوتے ہوئے کوئی خطا نہیں ہوتی, تیاری کرو نماز. حضور نے اس جگہ کو چھوڑا, تھوڑی آگے بڑھے کیونکہ وہاں نماز ادا ہوئی تھی اور آگے بڑھ گئے, وہ نماز پڑھی. اب اس سے سچویشن وہ نکالو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کسی ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں جو ہمارے لیے کرنا ممکن ہی نہ ہو, تو وہاں سے نکلتے ہی اس سچویشن سے ہمیں نماز پڑھنی ہے حال میں, پھر نہیں ڈالنی, تو وہی آپ کی نماز کا ٹائم ہے. مان لو آپ جام میں پھنسے ہو, آپ کی اثر مغرب بھی نکل گئی, اب آپ جیسے بھی اپنی جگہ پہ پہنچے فوراً آپ دونوں نمازیں ادا کر دو, چاہے وہ عشاء کا ٹائم کیوں نہ ہو گیا ہو, وہ آپ کی سچویشن سے نکلنے کا ٹائم ہے. ویسے اگر وہاں تیمم کر کے آپ کار میں پڑھ دو کہ بس میں پڑھ دو وہ بھی چلے گا, کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ سواری پہ نماز پڑھ دو, اور جب تم صحیح حالات میں آ جاؤ تو اپنی اصل نماز پڑھو, قرآن کی آیت ہے. تو آپ سچویشن کے حساب سے خود فیصلہ کرو, جس سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے ہو اس سے نکلتے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے, بس آپ کی نماز وہ ادا ہے, قضا نہیں ہے. وہ میں نے صحابی کا قول بتایا جب انہوں نے کہا نا کہ خطا ہو گئی حضور, انہوں نے جاگتے ہوئے خطا ہوتی ہے, سوتے ہوئے کوئی خطا نہیں ہوتی. اس سچویشن سے نکل گیا تو اب نماز پڑھ, تیرا وہی ٹائم ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, وہی ٹائم ہے. یہاں تک فرمایا کہ یہی ہمارا ٹائم ہے آج. ان کا سوال یہ ہے کہ قصر میں اگر نماز قضا ہوئی تو وہ گھر آگے دو ہی پڑھیں, بالکل دو ہی پڑھ لیں. جس حالت میں آپ کی نماز قضا ہوگی اسی حالت میں, مان لو گھر آپ کی نماز قضا ہوئی اور آپ سفر میں پہنچ گئے, ٹرین پکڑ لیا آپ نے اور آپ ظہر نہیں پڑھی آپ نے, تو آپ وہاں 4 پڑھو کیونکہ آپ کی قضا یہاں پر ہوئی. اگر آپ کی سفر میں قضا ہوئی نماز تو آپ گھر پہنچ گئے اور آپ نے عشاء نہیں پڑھی تو آپ آگے 2 ہی پڑھو گے, 4 نہیں پڑھو گے. اور یہ جان بوجھ کر فجر کی قضا نماز پڑھ رہا, جان بوجھ کر. ان کا سوال یہ ہے جو جان بوجھ کے فجر کی نماز قضا پڑھ رہا, اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز قضا کرے, اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ لکھا ہے رات صاحب کے 20 نمبر فجر کی قضا نماز پڑھو, بورڈ پہ لکھا ہوا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد فجر کی قضا نماز پڑھو. وہ تو اطلاع ہے, وہ ان کا ترغیب دلانا نہیں ہے. پہلے میں بھی اس میں تھوڑا کنفیوز تھا. اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے ٹائم اپنا نکال دیا نماز کا, اب آپ کی جو قضا نماز ہے آپ کو اس 20 منٹ میں سجدہ نہیں کرنا ہے. مطلب وہاں ان کی انٹینشن پہ ہم شک نہیں کر سکتے. مطلب وہ تو ایک اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹائم نکل گیا, اب 30 منٹ بعد آپ اپنی قضا نماز ہے. ایک بہن کی 3 بیٹیاں ہیں, ان کی ساس تانا دیتی رہتی ہے کہ کیا کریں. ان کا سوال یہ ہے ان کی 3 بیٹیاں ہیں, ساس تانا دیتی رہتی ہے, کیا کریں. کچھ بھی نہ کریں, بس اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے دے, کیونکہ وہ آپ کو تانا نہیں دے رہی. قرآن میں سورہ شورہ میں اللہ نے کہا کسی کو بیٹے دوں, کسی کو بیٹی دوں, کسی کو دونوں دوں, کسی کو بانجھ رکھوں, سب میرے ہاتھ میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہے جس سے 3 بیٹیاں ہیں, نبی کے ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. اب جب میرا ایک بھائی ہے رشتے کا, وہ اس کے جب 4تھی بیٹی ہوئی بڑا مایوس. میں نے اسے جب یہ بات بتائی, اس کے ذہن میں نہیں تھی یہ بات. میں نے تیرے سے تو اللہ نے بے اختیاری سنت ادا کرا دی, 4 بیٹی تیرے کر دی, اسے 4تھی کا یہ تھا کہ لڑکا ہو جائے, اسی چکر میں پڑھا لکھا لڑکا ہے. جب میں نے اسے بات بتائی وہ تو راضی ہو گیا. میں تو راضی ہوں, اللہ نے میری 4 بیٹیاں دی, میں تو نبی کی سنت ہوں. تو اگر ہم ہر بات میں 15 سال پیچھے چلے جائیں نا, سب کچھ آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں. اب نمونہ مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہماری زندگی سے متعلق ہر چیز ہمیں مل جائے گی, ڈھونڈنے تلاش کرنے کی بات ہے بس. کیا اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ جو انسان کی انکم ہو اس کو کیسے ڈیوائڈ کرے زندگی میں, جیسے ہم نے دیکھا ہے تعلیم پہ اتنا خرچ کرنا ہے, کھانے پہ اتنا خرچ کرنا ہے, کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ مطلب گن کے الگ الگ خرچ کریں پرسنٹیج کے حساب سے. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہم الگ الگ طبقوں میں الگ الگ اس پہ خرچ کریں. بھائی دوسروں پہ اگر آپ نے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں تو آپ دیکھو گا, لیکن اپنی زندگی کو آپ نے اپنی آمدنی کے حساب سے چلنا چاہیے. اور جہاں آپ کو مناسب سمجھے, مان لو آپ کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے اور آپ اپنے بچے کو 4 لاکھ روپے والے اسکول میں داخلہ دلا رہے, تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ, کیونکہ جتنی چادر اتنی آپ کو پیر پھیلانی چاہیے. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے آپ کو, مطلب اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے. اسی میں آپ خود ہی سچویشن کے حساب سے بانٹ لو سارا معاملہ. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے اللہ کے آگے, اللہ کے علاوہ. اس لیے بچو, کیونکہ مانگنے کو اچھا نہیں فرمایا. ابھی پیچھے حدیث آئی تھی کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ. تو آپ ایسے حرکتیں اگر آپ کی حیثیت اگر
मारुति कार की है, तो अगर आप मान लो सिर्फ फाइनेंस करा रहे हैं तो आप अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे, क्योंकि आप ब्याज पे वो कर रहे हैं। तो आप मारुति कार ही ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, पुरानी ले लो, स्कूटर ले लो, इनसे बचो, अल्लाह से पंगा लेने से। उन भाई का सवाल इस तरीके से था कि इनको कोई सुनने में आया था कि परसेंटेज का मतलब है कि कोई ऐसा हिसाब कोई नहीं, न नबी का कोई मामला, न कुरान की कोई आयत, कोई हिसाब नहीं। सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसले करने होते हैं। कभी किसी बच्चे पे ज़्यादा खर्च करना हो, मान लो एक बच्चा आपका डॉक्टर बनना और एक बच्चा आपका जो है शादी क्लासेस में पढ़ रहा, तो आप लाजमी उसी पे ज़्यादा खर्च हो। ये तो अपने अपने घर के सिचुएशन पर, माहौल पर सारा डिपेंड करता है। नबी ने कोई तालीमात इस तरह की नहीं। क्या शिर्क भी तौबा से माफ़ हो जाता है, जबकि शिर्क के अलावा गुनाह माफ़ करने की बात अल्लाह ने कुरान में की है? इनका सवाल यह है, कुरान में अल्लाह ने कहा शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, क्या शिर्क भी तौबा से माफ़ हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है भाई। देखो सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 में अल्लाह ने कहा, उससे पहले गिनवाए जो गुनाह, तो शिर्क एक कत्ल वारत एक ज़िना, और ये फरमाया कि अगर 70 साल का बूढ़ा भी अगर तौबा कर ले तो मैं उसके गुनाहों को नेकी से बदल दूंगा, सच्चे दिल से अगर उन्होंने तौबा कर ली। बिल्कुल शिर्क अगर कोई कलमा पढ़ के आ जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में कितने लोग मुशरिक थे और वो कलमा पढ़ के जो है वो ईमान में आए। फतेह मक्का में तो बहुत लोग आए, तो सारे मुशरिक होते थे। और आप देखो ना कितने बुत रखे हुए थे काबे में, जो हुजूर ने छड़ी से गिराए, जाल हक्का व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, पढ़ते जा रहे थे और गिराते जा रहे थे। तो वो सब मुशरिक लोगों ने तो रखे हुए थे, फिर वो ईमान में आ गए, तौबा कर ली, हुजूर के हाथ में बैत कर लिया, हो गया। एक भाई का सूद का काम है, क्या हम इससे गोश्त ले सकते हैं ना कुर्बानी? उनके सवाल है, किसी भाई का सूद का काम है, वो कुर्बानी भी करते हैं, क्या उनसे गोश्त ले सकते हैं? अगर उनका सिर्फ सूद का काम है फिर तो आपको लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके और भी काम है सूद के अलावा, तो आप अच्छे अंदाज में ये इसकी सोच के साथ कि मैंने इन्हें दावत भी दी है, मैं इनसे बिगाड़ना नहीं चाहता, कल को मेरा इनसे दावत हो जाएगी और फिर अगर मैंने इनका गोश्त ना लिया, तो आप उस अच्छी नीयत से कि मैं इनकी पाक कमाई में से ये हिस्सा है इनका, उसमें से मैं गोश्त रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं। कभी तो आप आगे उनसे बातचीत में हराम बता सको कि भाई आप जो ब्याज का काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है मेरे भाई। अगर आपको उनसे ताल्लुक ही ख़राब हुई, आप तो दावत ही बंद हो जाएगी। आप क्या बच्चे पैदा ना करना या बच्चा ज़ाया करना इस्लाम में है? इनका सवाल यह है, क्या बच्चे पैदा ना करना या बच्चे ज़ाया करना इस्लाम में है? भाई बच्चे पैदा ना करना तो इस्लाम में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम जो है वो आते थे, बताते थे कि इस तरह से हम रोक लगा लेते हैं बच्चा पैदा होने के, तो हुजूर ने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि ये तक फरमाया कि तुम कर लो कोशिश अपनी, जिस रूह में आना हो तो आना ही है। तो अज़ल कहलाता है, डिस्चार्ज होने से पहले आदमी जो है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाए, मतलब बंद लहजे में तो यही बात बता सकता हूँ। तो फैमिली प्लानिंग की मना कोई नहीं है इस्लाम में, लेकिन बच्चे ज़ाया करना ये भी सिचुएशन के ऊपर है, क्योंकि ये अब ज़्यादा हो गया कि बच्चों की जो है आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपने देखा कि बच्चा जो है अब नॉर्मल है, उसका दिमाग नहीं बना, दिल की धड़कन नहीं बन रही या कोई और दिक्कत हो रही, तो आप अबॉर्शन उसको करा सकते हो। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, लेकिन ये सारी सिचुएशन 4 महीने से पहले 4 महीने वाली जो हदीस है ना नबी की, 4 महीने का बच्चा जब पेट में होता है माँ के, तो एक फरिश्ता आके उसकी तकदीर, उसके रिज़्क़, उसका सब उम्र सब लिख जाता है। उसके बाद अगर आप ज़ाया कराते हो, चाहे माजूर हो या कहता हो, फिर अल्लाह अपने आप उसे जो है डिलीवरी कराएगा और फिर उसे ज़िंदा रखेगा नहीं रखेगा वो देखेगा। लेकिन 4 महीने से पहले आप उसे अबॉर्ट करा सकते हो, या कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाए 4 महीने के बाद भी कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये कह दे, तो फिर आपको माँ को बचाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का असूल ये है कि 2 नुकसान अगर होते हों उसमें छोटा नुकसान बर्दाश्त करो, बड़ा नुकसान बचा लो। तो इस सिचुएशन में आप 4 महीने के बाद भी बच्चे को ज़ाया करा सकते हो, माँ की जान बचा। क्या इस्लाम में भूख हड़ताल जायज़ है? भूख हड़ताल डॉक्टर जा रहे हैं, अगले हफ्ते दावत है, अगले हफ्ते की दावत। यहाँ तो अगले हफ्ते हमने दावत रख दिया। इनका सवाल है क्या इस्लाम में भूख हड़ताल जायज़ है? जायज़ है। हज़रत साद बिन मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जब ईमान में आए, कबीले के सरदार थे, तो अपने कबीले में जाके भूख हड़ताल पर बैठ गए, जब तक सब ईमान में नहीं आएंगे खाना नहीं खाऊंगा। और उनसे मोहब्बत बहुत करते थे लोग, तो जब 1-2 दिन गुजर गए, उनसे तो रहा नहीं गया कबीले वालों, सब इस्लाम में आ गए।
तो इसलिए भूख हड़ताल जायज़ है, तो आप कर लेना। क्या नमाज में छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना है? इनका सवाल ये है, क्या नमाज में छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह या उसका जवाब देना है या रहमतुल्लाह कहना है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह तो आप कह सकते हैं, लेकिन या रहमतुल्लाह नहीं कह सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान के अल्फाज है ना, और नमाज में आप कुरान ही के अल्फाज पढ़ते हो। तो अगर आपको छींक आई है और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, एक सहाबी का किस्सा मुझे याद आ रहा कि वो नए नए ईमान में आए थे, तो वो जो है एक सहाबी को छींक जो आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो उन्होंने या रहमतुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर तब्लीग की साहबा ने, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बात पहुंची तो हुजूर ने कहा इसने तो सही किया, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके बारे में वो खामोश हो गए नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जवाब नहीं देना उस अल्हम्दुलिल्लाह का नमाज के बीच में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई कह दे तो कोई हो। क्या खुला के बाद दोबारा निकाह हो सकता है? ठीक है, सवाल है क्या खुला के बाद दोबारा निकाह हो सकता है? बिल्कुल भाई, क्योंकि निकाह तो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, तलाक नहीं हुई ना, तलाक इस्टेब्लिश हो जाती फिर तो बिना हलाला का जो प्रोसेस है उसके निकाह नहीं हो सकता था। लेकिन जो खुला है ना, वो तो औरत अपनी मर्जी से लेती है, उसकी इद्दत भी 1 महीने है, उसके बाद अगर उसका दोबारा अपने हस्बैंड से निकाह करने का मूड है तो बिल्कुल निकाह हो जाएगा, नया मेहर होगा, नया निकाह होगा। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग खैबर में हज़रत अली से मदद मांगी थी? क्योंकि सवाल ये है कि क्या हुजूर ने जंग खैबर में हज़रत अली से मदद मांगी थी? हज़रत अली को मदद दी थी भाई, मांगी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल थे, और हुजूर जो भी कहते थे, जो भी करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते थे। जब जंग खैबर में किला फतह होने वाला था, तो एक दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल को जो फतह करेगा किला, उसके हाथ में मैं अलम का झंडा दूँगा। तमाम सहाबा जो हैं वो तजस्सुस में थे और ख्वाहिशमंद थे। हज़रत उमर तो ये कहते हैं कि मैंने कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं करी उस दिन के अलावा, उस दिन मेरी ख्वाहिश थी कि झंडा मुझे मिल जाए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे तो पूछा कि अली कहाँ है? जी वो तो आराम कर रहे हैं, उनकी आँखें बहुत ख़राब हुई, बहुत तकलीफ है। उन्होंने बुलाओ अली को, उन्हें बुलाया तो फिर अपने लोहा में दहन उनकी आँखों में लगाया, उनकी आंखें अल्लाह ने सेहतयाब करी। उसी वक्त हुजूर का मौजज़ा दिखाना था, और फिर हुजूर ने उनके हाथ में झंडा दिया। तो ये मदद अली की हुई, हुजूर ने थोड़ी मदद ली, कि अली की मदद की हुजूर ने उस वक्त। कितनी बड़ी फतेह जो है उनके हाथों पे अल्लाह ने कराई है, हज़रत अली है। तो मशहूर है बात, बहुत शायद आप लोगों ने सुनी भी वो सारी बात। क्या भाई बहन मिलकर एक बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं? ये सवाल है क्या भाई बहन मिलके एक बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं भाई, बकरे में तो एक ही हिस्सा होगा, भैंस की कर दें या अपने बाप को दे दें, पैसे बाप की तरफ से पूरे ख़ानदान की हो जाएगी, बहन भाइयों की भी हो जाएगी। भाई अपने बाप को दे दें पैसे, कुछ वो अपने और पैसे मिला के चाहे भैंस की या चाहे बकरी की कुर्बानी कर दें। लेकिन एक बकरे में 2 हिस्से नहीं हो सकते, 2 बहन भाई नहीं हो सकते। क्या कुर्बानी का गोश्त मुबारक गोश्त होता है? ठीक है, सवाल ये क्या कुर्बानी का गोश्त मुबारक गोश्त होता है? भाई मुबारक गोश्त होता है। आप ये देखें कि इतना मुबारक गोश्त है कि मैंने शायद एक दिन मिसाल भी दी थी किसी प्रोग्राम में, बनी इसराइल में जो गाय ज़िबा हुई थी ना, कुर्बान की थी अल्लाह की राह में, उसका गोश्त का टुकड़ा मारा गया था जो कत्ल हुआ था, मकतूल था, और उससे ज़िंदा होके उसने फिर कातिल का नाम बता के वो दोबारा मर गया था। इतना मतलब ये गोश्त जो है तबर्रुक मतलब मुबारक गोश्त है, इसकी बहुत कदर करें। कटरे में अकीक़ा कर सकते क्या है कटरे में? अकीक़ा इनका सवाल यह है कटरे में अकीक़ा कर सकते हैं? नहीं भाई, सुन्नत तो है नहीं। नबी ने फरमाया, खुली हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि लड़का हो तो 2 बकरे, लड़की हो तो 1 बकरी सिवा करो अकीक़े की नीयत से। आप पे जब वाजिब ही नहीं है, जब आपकी हैसियत ही नहीं है, आप क्यों कटरे कर रहे हैं? आप अगर कर रहे हैं, आपके पास हैसियत है, तो आप अपने बच्चों का उस तरीके से अकीक़ा करो जो 7वें दिन आप अकीक़ा करो। लड़का हो तो 2 बकरे ज़िबा करो, कोई उम्र नहीं है, छोटे कर दो, उसमें कमज़ोर या ताकतवर का भी कोई मसला नहीं है, तो आप हल्के कर दो, सस्ते ही बकरे मिलते हैं। तो आप कट रहे, आप सुन्नत से क्यों हट रहे हैं? भाई सुन्नत से तो आपने हटना ही नहीं है, आपने तो वो करना है जो नबी हमें हुक्म देंगे। ये जो लोग कुर्बानी के हिस्सों में कर देते हैं, उनकी कुर्बानी भी जाती रहती है, उनकी अकीक़ा तो अकीक़ा, कुर्बानी भी नहीं हो रही। हमारे यहाँ हमारे उलमाए दीन इजाज़त देते हैं, आप फतवा ले लो, दे देंगे, होती नहीं, क्योंकि हुक्म के खिलाफ है सारा मामला।
कुर्बानी के लिए शराब हैसियत नहीं है, क्या वो दोपहर शाम तक इंतज़ार करेगा या किसी से लेके खा सकता है, और उसका खाना क्या सवाल मिलेगा? कुर्बानी की हैसियत नहीं है तो क्या वो किसी से सवाल कर सकता है या शाम तक इंतज़ार करेंगे कोई देगा? गोश्त का? जी। उनका सवाल यह है क्या कुर्बानी की हैसियत वाला किसी से गोश्त का सवाल करके शाम तक इंतज़ार करे या सवाल करे? भाई सवाल तो अल्लाह ही से करे। ऐसे ऐसे बहुत मामले हुए कि लोगों ने अल्लाह से सवाल करा, अल्लाह ने घर भिजवा दिया। या कोई आपको खुद कह दे ऑफ़र, मेरी तरफ से सबको ऑफ़र है यहाँ, पहले दिन बकरा और दूसरे दिन भैंस, सारे साथी जो हैं बिल्कुल एक फ़ोन कर दें, हम खुद भिजवाएंगे उनके लिए इंशाल्लाह। या खुद आगे ले जाएँ या अपने बच्चों को भेज दें। किसी के यहाँ अगर कुर्बानी मान लो तीसरे दिन होनी, चौथे दिन होनी, कोई नहीं कर रहा तो वो बिल्कुल मतलब ये अपनी कुर्बानी समझना जो मेरे यहाँ हो, सब साथियों की कुर्बानी हो इंशाल्लाह। बिल्कुल गोश्त सब ले जा सकते हैं, पूरी इजाज़त है हर तरीके। पहले हदीस हज़रात जो है वो हनफियों को तो ये टर्न कसते हैं कि ये भैंस की कुर्बानी का इस्तेलाम निकल पड़ी है हदीस से, कुरानी पे उसकी गाय की कैटेगरी में फॉर्म हो जाती है, और खुद दुम्बा और मेंढा उसको दोनों को कैटेगरी में करवाते हैं, हालांकि दोनों में से एक का जिक्र है कुरान में। इनका सवाल ये है कि अहले हदीस हज़रात जो हैं वो हनफियों को ये कहते हैं कि भैंस की कोई जो है गाय से मुशाबियत नहीं है, और ख़ुद जो है दुम्बे और उसे एक समझते हैं। असल में हदीस में दोनों आते हैं ना, दुम्बा भी और मेंढा भी, और दोनों एक ही शक्ल है, बकरे की ही शक्ल है, तीनों चीज़ें। इसी तरह से ये उलमाए दीन ने हमारे जो है सोच समझ के, और उन्होंने अहले हदीस से कहा भी गाय करके दिखाओ इस पूरी में, देखो पजामा नीचे करके कहीं छठी बजी। बात यह है कि आपको अपने मुल्क के कानून का भी पास रखना है। एक बार को आप कुर्बानी नहीं करोगे ना तो चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पंगा लेते हो और आप जो है दंगा हो गया ना, देखो मैं एक मिसाल दूँ आपको, जब ये कोहे तूर पे गए ना मूसा अलैहि सलाम, तो इनके पीछे जो है लोग शिरक करने लगे, इनके जो उम्मती थे, इन्हें बिठा के गए थे भाई को सुपरविजन पे, इन्हें हारून अलैहि सलाम। जब इन्हें वहाँ पता लगा, अल्लाह ने इन्हें बता दिया कि तेरी कौम तो वहाँ तेरे पीछे शिरक कर रही है, ये भागे वहाँ से। जो तौरात शरीफ मिली थी उसकी भी तख्ती एक तरफ रखी और इनकी दाढ़ी पकड़ ली, भाई तूने शिरक करने क्यों दिया? तो इन्होंने ये कहा कि तफरका फैल जाता, फसाद बच जाता अगर मैं शिरक से, तब इन्होंने दाढ़ी छोड़ी। कुरान में है यार। तो एक नबी ने, हारून अलैहिस्सलाम भी तो नबी थे, शिरक बर्दाश्त कर लिया, तफरका बर्दाश्त नहीं करा, फसाद बर्दाश्त नहीं करा, क्योंकि उसकी कोई इसलाह ही नहीं है। अब मान लो 10, 20, 50 मुसलमान कट गए इस चक्कर में कि वो गाय कर रहा है, जबकि ऑप्शन मौजूद है, न तो ऊँट कर सको आप यहाँ, ना गाय। आप भैंस अपने उलमाए दीन की बात पे, जब माज बिन जबल जा रहे थे गवर्नर बना के, तो उनसे पूछा किस तरह फैसले करोगे माज, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं अल्लाह की किताब से, कि अगर उसमें तुम्हें ना मिला तो फिर हदीस से, आपकी तालीमात से, कि अगर उसमें भी ना मिला तो फिर दोनों को सामने रख के अपनी अकल से। ये जो भैंस है ये दोनों को सामने रख के अपनी अकल चलाई उलमाए दीन ने। अहले अम्र कहलाते हैं ये लोग, तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए इनकी इस बात पे, ना कि अपनी अड़ा में। कहाँ से लाएंगे कहाँ है? अब ये मान लो हुक्म ही नहीं है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, पूरा ख़ानदान आपका सड़क। इसलिए बेहतर यह है कि जो मतलब जो उसका बदल अल्लाह की तरफ से उलमाए दीन ने दिया उसे करो, और यहाँ दिल में इत्मीनान तो भाई हमने सही कर दिया। तो ये पूछा था कि कुर्बानी की गोश्त में अधिक हो जाए, इनका सवाल यह है कुर्बानी के गोश्त में अकीका हो जाए। मैं समझा ही नहीं आपका सवाल। आपने 2 बकरे लिए कुर्बानी के लिए, मतलब एक ही में 2 नियत, बहुत चालू है। तो नया सवाल है बिल्कुल, तुमने तो मेरा दिमाग घुमा दिया। तुम दुबई से आए क्या? भाई ऐसा है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। कुर्बानी वाजिबात में से है, अकीका आपका ऑप्शनल है कि आप नहीं करोगे तो चलेगा। इसलिए एक जगह 2 चीज़ें नहीं हो सकती, बल्कि वो कुर्बानी के दिनों में ही कुर्बानी होगी। आप आम दिनों में अकीका भी आपको 7वें दिन करना चाहिए। लोगों ने तो खेल बना रखा अकीके को, भाई 7वें दिन आप बकरे काट के गरीबों में बांट दो, उसके बाद आप भैंस करके और पूरे रिश्तेदारों को खुशी कर दो, हो गया अकीका तुम्हारा, खत्म बात। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खाया जा सकता है?
इनके सवाल है कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खाया जा सकता है, जितने दिन आप खा सकें। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 100 ऊँट कुर्बान कराए ना, इतना मुबारक गोश्त है जो इनका सवाल आया था, तो हुजूर ने कहा कि तमाम ऊँटों में से 100 के 100 ऊँटों में से एक बोटी लो और फिर उसे पकवाई और फिर तबर्रुकन साहबा में बांटी। तो कुर्बानी का वो तो बड़ा मुबारक गोश्त है, आप फ्रीज में भर लो और जो भी आपकी हंडिया पके ना, चाहे 6 महीने चले 8 महीने चले, जब तक भी आप रोक सको उसे एक बोटी डाल लिया करो। इस नीयत से मैं बता दो ना, 100 ऊँटों में से एक बोटी निकलवा के हंडिया पकवाई थी हुजूर ने और फिर साहबा इकराम को खिलवाई थी। इतना मुबारक गोश्त है, तो अगर आप रख सकते हो तो बिल्कुल। लोग तो सुखा के रख लेते थे पहले ज़माने में, हमारे याद है कि लोग सुखा के रख लेते थे। अच्छा ये तरीका कैसा है कि जो फ्रिज में रखते हैं तो खराब हो जाता है तो फेंक दिया वो तो फेंक देते हैं भाई। कोशिश उनकी ये है कि हम बांटे ना, ये तो कंजूसीपन है ना भाई। जिन लोगों को सारे साल गोश्त मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें तो अपने फ्रिज खाली कर देने चाहिए। बिल्कुल दिखावें अल्लाह को, फ़ोटो खींच के अल्लाह को क्लिक कर दें, अल्लाह देख फ्रिज खाली है, तेरे बंदों में बांट दिया सारा। बात तो जब है ना, अभी तुम्हें सारा साल खिला रहा वो बकरी भी और मुर्गे भी और भैंस भी, और तुम अब भी तुम फ्रिज भरे पड़े। वो तो जो गरीब लोग हैं उन्हें तो पहले भी नहीं मिल रहा था, अब भी नहीं मिला, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। आपकी इंटेंशन पहुंच गया अल्लाह तक कि आप कितने कंजूस हैं। कुछ कानूनी रिवाज है कि कुर्बानी के लिए अगर जानवर नहीं है तो 12 मुर्गे काट दो, कुर्बानी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, कौन थी? 12 मुर्गे। अच्छा, कुर्बानी के एक हिस्से के बदले 12 मुर्गे काट दो तो कुर्बानी हो जाएगी, ये कह रहे हैं आबिद भाई? नहीं, कुछ कौम में है, मेरा सवाल है। अच्छा आपका सवाल है। नहीं भाई, जितना हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उससे हमें आगे दीन नहीं बताना किसी को, वो गुलू है। ये सब बेकार की बातें हैं, वो सब कुर्बानी नहीं गिनी जाएगी बल्कि सदका गिना जाएगा। गरीबों को मजा आ जाएंगे, आप फंसा दिया करो लोगों को। अच्छा हज पे जाने से पहले अब पैलेस में भी प्रोग्राम होने लगा, मुबारकबाद देने आते हैं लोग हज से पहले ही, तो ये तरीका कैसा है? इनका सवाल ये है, हज से जाने से पहले पैलेस में प्रोग्राम करके लोग मुबारकबाद देने आते हैं, कैसा है? कोई हर्ज नहीं, मेरे नज़दीक तो इलाकाई रिवाज हैं, इसमें ही लोग मिल रहे हैं, कुछ 2-4 घंटे मोबाइल से बचे हुए हैं, एक दूसरे के गले लग जा, उस हाजी के गले लग जाओ, उससे दुआओं को कह दें। मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं, अगर उसकी हैसियत है, वो दावत करता है तो बिल्कुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई हर्ज नहीं, आगे भी करे और जाते हुए भी करे, इसी बहाने जेब खुले। कुछ नहीं, ज़्यादा तरीका अच्छा कौन सा है, आने के बाद करनी चाहिए? दोनों, खिलाने के बहाने ढूंढने चाहिए। देखो नबी ने क्या फरमाया कि तुम लोगों को तालीम दो, भूखों को खाना खिलाओ, यूँ नहीं कहा गरीबों को, और सलाम को आम करो, तुम आसानी से जन्नत में चले जाओगे। नबी की हदीस बता रहा मैं तुम्हें, तो इसलिए तरगीब दिलाओगे भाई, आते हुए करिए, जाते हुए भी करिए, जाते हुए बुलाओ दादा, आते हुए निहारी नाम। अब मुझे भी बुला। दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने लगे तो कुछ रोकथाम? क्या करते हैं, निकलवा देते हैं उन्हें। सफ़ेद बाल आने लगे तो कुछ रोकथाम की, और बस दाढ़ी के बाल आने लगे तो उसको कुछ उसे एहतियात या कुछ तकवा है? अच्छा, इनका सवाल ये है कि अगर दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने लगे हैं तो कुछ एहतियात या कुछ वो करना चाहिए। एहतियात तो मोमिन की शान है बालिग होते ही। भाई अगर सिर्फ सफ़ेद दाढ़ी में बाल आने के बाद एहतियात कर रहा, मान लो उससे पहले अल्लाह ने उठा लिया, जब तक एहतियात नहीं कर रहा था, फिर तो फंस गया। असल तो बात यह है कि सफ़ेद बाल जो हैं मोमिन की शान है। बहुत से लोगों को नज़ली की वजह से हो जाते हैं। अब मान लो किसी को 21 साल की उम्र में दाढ़ी का बाल सफ़ेद हो गया, तो वो जब से एहतियात करे, एहतियात वो बालिग होने के बाद से करे। तो ये थोड़ी है कि सफ़ेद बाल हो जब भी एहतियात करे, हमेशा तो एहतियात करनी है। तोड़ भी सकते हैं सफ़ेद बाल दाढ़ी में? सफ़ेद बाल तोड़ सकते हैं, नहीं कोई हरज नहीं, तोड़ लो। अगर एक आधा बाल है कटवा दो या तोड़वा, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं है। अगर बीवी आपकी कह रही ना कि आप अच्छे लग रहे हैं सफ़ेद बाल, कटवा दो। प्रोग्राम में सलाम करना ज़रूरी तो नहीं है, जैसे इनका सवाल ये, चलते हुए प्रोग्राम में सलाम करना ज़रूरी तो नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप तो बीच में टोकोगे ना, सलाम बाद में हो जाएगी, दुआ इंशाअल्लाह, कोई हरज नहीं है। जब कायनात को बनाना अल्लाह की प्री प्लानिंग था, तो ये आदम अलैहिस्सलाम का आना और महबूबा का आना, इसको सदा क्यों कहते हैं? इनका सवाल ये है, जब कायनात को बनाना अल्लाह की प्लानिंग में था तो इसे सज़ा क्यों कहते हैं? मैं तो अभी बताया सज़ा है ही नहीं है। ये तो बाइबल में और इंजील वगैरह में ये बात लिखी हुई है कि इन्हें सज़ा के तौर पे यहाँ भेजा गया। कुरान तो ये कहता है कि उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया, उसके बाद फिर अपना इन्हें यहाँ भेजा गया कि अब तुम अमल करो और जन्नत पाओ, मेरा कुर्ब मिलेगा तुम्हें। तो ये सज़ा के तौर पे थोड़ी, हमारे तो बाप हैं भाई, नबी हैं,
अभी ये बात मशहूर है नहीं, कहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं मशहूर। हमारे यहाँ ईसाइयों वाली तालीमात जो हैं वो चलती हैं, कोई नहीं हमारे यहाँ। इमाम साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये जो जन्नत थी अम्मा हव्वा और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की, ये कोई आसमान में या सिदरतुल मुंतहा के आसपास का जो इस तरह की कहानी बनाने के लिए ये दुनिया का ही कोई हिस्सा था जिससे निकाल के करके जो है टाइम देख लो पहले क्या होगा। पौने 11 हो गए। पौने 11 हो गए। भाई आखिरी सवाल है इनका। सवाल ये है कि गामडी साहब का कहना ये है कि ये दुनिया का ही कोई हिस्सा था, आसमानों में कोई चीज़ ऐसी नहीं। भाई ये बता दूँ मैं आपको बात कि आसमानों में ही जन्नत है और उन्हें जन्नत में भेजा गया था। इसलिए गामडी साहब के हिसाब से दीन नहीं चलेगा। नबी की हदीसों से ये बात साबित है कि आसमानों में ही जन्नत है और दोज़ख जो है वो कहीं ज़मीन के कहीं तह में है नीचे। इल्लीन और सिज्जीन का जिक्र है कुरान में। तो गामडी साहब के हिसाब से नहीं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा ले। या अल्लाह खैर के साथ बकरीद निमटवा दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तमाम हमारे मुल्क के इंसानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग शर फैला रहे हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। हमारी कुर्बानियों को, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।